Hello everyone. A very good evening to one and all present over here. I, Sumit Maji from Team Abhilasha, heartily welcome all of you to the second day of Success Mantra Topper Stock Series. Today is 2nd October, one of the most important days in the Indian calendar. Today is the birth anniversary of the father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi or Mahatma Gandhi. Mahatma, the epitome of love, ahimsa, and sacrifice, whose perspective changed the course of history. Today is also the birth anniversary of the second Prime Minister of independent India, Lal Bahadur Shastriji. In a very late time, Shastriji changed the shape of the nation with his smart policies and influential slogans. Shastriji also played a pivotal role in the freedom movement and followed Gandhiji's legacy to run the nation. Team Abhilasha pays homage to the two brave sons of our country. Well, today's talk will be based on physical science, and we have with us Pritesh Srivastav Bhaiya, who has secured All India rank 58 in IIT JAM Physics Examination 2020. He has also qualified the written examination of TIFR and has been selected in interviews for IISER Kolkata, IISER Pune, and IISER Tirupati. Currently, he is pursuing his masters at IIT Kanpur. Many congratulations, Bhaiya, and welcome to today's talk. We also have with us Gyanshri Jain Didi, who has secured All India rank 81 in IIT JAM Chemistry Examination 2020 and All India rank 33 in BHU MSc Chemistry Entrance Exam 2020. Currently, she is pursuing her masters at IIT Delhi. Many congratulations, Didi, and welcome to today's talk. Thank you, So, Sumit. this session is divided in most welcome, Didi. So, this session is divided into two sections. First, I will be asking some questions to our speakers regarding their preparation strategy and other things. Then, our attendees can ask their questions to our speakers. So, I request all the participants to post their queries on the chat box. Also, they can unmute themselves and ask during the question and answer session. So, can we start the interview with your permission, Gyanshri Didi and Pritesh Bhaiya? Yes, Ye- please. yes, Sumit. You Okay. can start. So, okay. Thank you so much, Didi and Bhaiya. So, my very first question will be the syllabus analysis of IIT JAM Chemistry and Physics. And is the syllabus of IIT JAM Chemistry and Physics different from other examinations that are held? So, I will start with Pritesh Bhaiya. Uh, okay. Hello, everyone. Am I audible? Yes, Yes, Bhaiya, Bhaiya, you're you're audible. audible. Yeah. Yes, yes, तो Pritesh, you're audible. आप बताइए हिंदी में या इंग्लिश में और as you say I can go. भैया बाइलिंगुअल रहेगा तो सही रहेगा, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ओके ही. ठीक ठीक है तो मैं मतलब I'll try to take this talk in a very informal way because बहुत बहुत लोग अभी आईआईटी एग्जाम दे रहे हैं एंड इंफॉर्मेशन बहुत कम है लाइक बाकी जेई एंड ऑल एग्जाम से कंपैरिजन में जैम भी एक आईआईटी के लिए एक बहुत मतलब नाइस वे है बट इसके लिए इंफॉर्मेशन कम है एंड बहुत लोग इसके बारे में अवेयर भी नहीं होते हैं बट बेसिकली इट्स अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम लाइक इन अ वे अगर आप इसको कंपेयर करें लाइक ग्रेजुएट लेवल अदर एंट्रेंसेस से या जो आपने ट्वेल्थ के बाद दिए हैं एग्जाम तो जैम इन कंपैरिजन इज अ एग्जाम मतलब आपको अगर आपका बीएससी का सिलेबस स्पेशली अगर आप बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपका बीएचयू में जो बीएससी का सिलेबस फिजिक्स का सिलेबस अगर आपको अच्छे से आता है देन इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम टू क्रैक ओके और बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन स्ट्रेस और परेशान होने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है और जो होते हैं उस तरह इसलिए आपका रैंक या कुछ इफेक्ट हो सकता है अदरवाइज अगर आप सिंपल अप्रोच फॉलो करें
लाइक आज तक आपने बहुत एग्जाम क्रैक किए होंगे, आई थिंक बीएचयू एंट्रेंस सब दे के ही आए हैं, तो जैसे आपने वो सब एग्जाम क्रैक किए, अगर बस थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ चीजें करनी है, तो वेरी सिंपल एंड आप आराम से कर सकते हैं। ओके, सो सुमित, क्वेश्चन। Okay, भैया, yes, thank you so much, भैया. Now it's time for ज्ञानश्री दीदी. ज्ञानश्री दीदी, please. ओके, सो हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रतेश ने अभी बताया कि एग्जाम सच में बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बस आईआईटी लग जाने से हमें लगता है कि हाँ आईआईटी जैम है तो मतलब बहुत बड़ा एग्जाम होगा। तो जो भी इंसान बीएससी कर रहा है और वो भी बीएचयू से यदि करता है और अपना 6 सेमेस्टर तक का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और जो उसका सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री में देना चाहिए, जैसे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कोई छोड़ नहीं सकता। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड्स एंड बेसिस और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहिए जितना भी है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट नहीं है। यदि हम लोग कुछ भी छोड़ते हैं तो हम 1 या 2 क्वेश्चन अपने स्किप कर रहे हैं। और इसमें कई टॉपिक्स है जो इंक्लूड भी नहीं है, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है आईआईटी जैम केमिस्ट्री के सिलेबस में। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे क्वांटम केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हमें बहुत लिमिटेड पढ़ने हैं, तो हमें उसके डीप में नहीं जाना चाहिए। और बाकी जो सिलेबस है आप लोग उसको सबसे पहले प्रिंट निकाल के रखिए और टॉपिक वाइज टॉपिक उसको कवर करिए, तो बहुत आसानी से कम समय में वो पूरा कंप्लीट हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्ञानश्री दीदी. दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत जनों के मन में ये कॉमन क्वेश्चन चल रहा होगा, क्योंकि अभी अभी सबके ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं और अभी अभी हम लोग सिलेबस से, मतलब जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है अभी अभी वो लोग सिलेबस को देख रहे हैं. तो इतने कम समय में इतने वास्ट सिलेबस को मैनेज करना कैसे, आप इसको कैसे देखते हैं? आप कैसे टिप्स देना चाहते हैं कि इतने कम समय में हम लोग कैसे वास्ट सिलेबस को कवर कर सके? ज्ञानश्री दीदी, आप. ओके, तो सबसे पहले जो भी थर्ड ईयर में है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो ऑब्वियसली क्लियर होंगे, तो वो हमें नहीं भूलने हैं क्योंकि हर जगह उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा यदि आपको हर दिन, और वैसे भी सब घर में ही है, कहीं जाना नहीं है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, हम लोग अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते जाए उसके साथ साथ अभी आपको क्वेश्चन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 2-3 एग्जाम्पल यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एंड में आपके पास यदि टाइम नहीं बच पाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और कंसिस्टेंसी रखना चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि यदि आपने अब तक नहीं शुरू किया है। और जो जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसको जरूर लगाना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएं तो ऐसा नहीं कि एक सेक्शन आज, एक सेक्शन कल, एक सेक्शन परसों, पूरा एक सिटिंग में लगाने की कोशिश करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए उसके बाद कि वहाँ हमारे किस किस सेक्शंस में हमसे गलती हो रही है और उसको फिर नेक्स्ट पेपर में फिर से इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच दीदी. रितेश भैया. ओके ओके ओके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली अभी जो टाइम है वो एनफ टाइम है, एक्चुअली मोर देन एनफ टाइम है। तो देखो, जैसे अभी अगर आपके बीएचयू के मतलब जैसे जो थर्ड ईयर में है करेंटली, उनके मतलब आपका जो 90% सिलेबस होता है जैम का, मोस्टली आपके 5th सेमेस्टर तक कवर हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप बीएचयू का 5th सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, मींस आपने 90% जो जैम का सिलेबस फिजिक्स में जो आता है वो आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो एक बहुत कम टाइम या इसको लेके अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अगर अभी तक आपने जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में थर्मोडायनामिक्स है, देन ऑप्टिक्स है, और 12th क्लास में अगर आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स मतलब फ्री बॉडी डायग्राम एंड ऑल दैट ये सब पढ़ा है, और 5th सेमेस्टर में आप जो 5th सेमेस्टर का सिलेबस उसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, देन वो मोर देन एनफ है। तो ट्राई करिए कि जो अभी पढ़ रहे हैं सेमेस्टर के हिसाब से उसको जितने अच्छे से पढ़ सके उतने अच्छे से पढ़ें,
एंड सबसे पहले जैम का एक बेसिक फॉर्मेट देख लीजिए, पेपर फॉर्मेट देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो जब आप क्लास में पढ़ रहे होंगे या कभी भी पढ़ रहे होंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा, बेसिक फ्रेमवर्क है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सिर्फ जैसा कि अभी ज्ञानशी ने बोला, पेपर सॉल्विंग बहुत सही में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आप फोकस करो कि आप 1-2 महीने तैयारी करेंगे सेमेस्टर के बाद, देन दैट विल बी। थैंक यू सो मच भैया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सब लोग जानना चाहते हैं, इवन हम लोग भी जानना चाहते हैं कि आप दोनों ने ऐसे कौन से प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो की कि आप आईआईटी जैम एग्जाम क्रैक किए, एंड व्हाट वाज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दैट यू बोथ फॉलोड। तो प्रीतेश भैया आपसे पहले। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बेसिकली लाइक सी, देखो डिफरेंस जैसे अभी तक जैसे ही मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, लाइक बिफोर दैट मुझे ज्यादा मतलब ऐसे कोई खास प्रिपरेशन की नहीं। 5th सेमेस्टर स्टार्ट का बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द 60% जो जैम सिलेबस है वो पूरा का पूरा बीएचयू के 5th सेमेस्टर में। तो मैं क्लास में थ्योरी एंड ऑल कवर कर रहा था, एंड जस्ट लाइक पढ़ा रहे थे वैसे मैं कवर कर रहा था अच्छे से। एंड देन जैसे ही सेमेस्टर खत्म हुआ एंड मैंने जैम का सिलेबस देखा, पेपर देखा, देन आई सॉ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब एक तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डायरेक्ट आते हैं जैम के, तो आप जितना ज्यादा चीजों को जानते रहेंगे उतना ज्यादा कर पाएंगे। बहुत ज्यादा सॉल्यूशन बेस्ड नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं जेस्ट और अदर एग्जाम्स के कंपैरिजन में। तो मैंने खुद को 1-2 महीने दिए एंड मैं प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर रहा था। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज एंड ऑल अगर आप ले सके तो अच्छा रहता है, लाइक मोर पेपर से आप एक्सपोज होंगे। तो जितने आप क्वेश्चंस और चीजें अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं उतना अच्छा है। मेरे हिसाब से एक्चुअली फिजिक्स में आपको कोशिश करना चाहिए कि जो चीजें अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ी हैं वो लास्ट के 1-2 मंथ में ना पढ़ें। जैसे 6th सेमेस्टर था, हम लोग के 6th सेमेस्टर कोर्स से कुछ चीजें थी, बट वो ऐसी थी कि अगर आप पढ़ेंगे तो और कंफ्यूज होंगे और हो सकता है कि एग्जाम में जाके और गड़बड़ करके आए। तो बेटर होगा कि नई चीजें टच ना करें लास्ट के 1-2 मंथ में। ओके ओके भैया, थैंक यू सो मच भैया। ज्ञानश्री दीदी प्लीज। तो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन मतलब कि अब करना चाहिए वो 5th सेमेस्टर से पहले ही स्टार्ट की थी। तो ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली कॉलेज में भी बहुत सी चीजें होती रहती है और बहुत बार होता है हम लोग हर दिन नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 8 आवर्स पढ़ रहे हैं या फिर 9 आवर्स पढ़ रहे हैं, पूरे दिन पढ़ते ही रहते हैं, एग्जाम क्रैक करना है तो वो तो वेरी करता रहता है। बट मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग कॉलेज हर इंसान जाता है, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि कॉलेज जा तो रहे हैं बट टीचर क्या बोल रहा है सुनते नहीं है। तबकि वो भी हमारे लिए वो हमारे जो नॉलेज उसको एनहेंस ही करेगा और जो सिलेबस है उसको कवर ही करेगा। तो जब भी आप लेक्चर्स अटेंड करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान देके सुने, ये ना सोचे कि वो जैम में कोई फायदा नहीं देगा, बिकॉज काफी टॉपिक मैच करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सब कुछ यदि हम लोग पढ़े तो कवर कर सकते हैं, तो छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं चाहिए। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारी चीजें हमें लर्न करनी होती हैं, तो उसको लास्ट के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि हम लोग पहले से लर्न कर भी लेंगे तो एंड तक भूल जाएंगे। तो आखिरी के 1-2 महीनों के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स छोड़ देने चाहिए जिसको लर्न करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम एक बार लगता है सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो अपने पास एक शॉर्ट नोट्स बना होना चाहिए कि एग्जाम से एक लास्ट वीक के लिए क्या हमारे पास स्टफ है जो हम देख के जाएंगे तो हमारा एग्जाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। बिकॉज अब पूरा इतना सारा आप सोचे कि लास्ट वीक में जितनी भी आपने नोट्स बनाए वो कंप्लीट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स सारे टॉपिक्स के एंड तक यदि आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। हो गया सुमित? ओके दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच भैया। ये कॉमन क्वेश्चन है सबका, आई थिंक सो होगा भी ये कॉमन क्वेश्चन कि जैसे कि इस साल में सब कुछ अलग सब चल रहा है, बहुत यूनिक साल है इस साल। तो क्या इस साल का क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आईआईटी जैम फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंट थे, या मतलब इट वाज लाइक अ मोनोटोनस टाइप
मतलब अगर आप एनालाइज करें दोनों साल के, मतलब हर साल के क्वेश्चन, तो इस साल का क्वेश्चन क्या थोड़ा अलग था या सेम ही था जैसे आता है हर साल? प्रीतेश भैया आपसे। एक्चुअली जो एग्जाम हुआ था जैम का इस साल का, वो तो ये सब आने से पहले ही हो गया था। एग्जैक्टली। हाँ, तो बेसिकली कोई ऐसा पॉइंट है नहीं, लॉकडाउन को चेंज हुआ है। बट नेक्स्ट टाइम इस साल जो पेपर आए, जैसे जो इंस्टीट्यूट बनाता है, लाइक अलग अलग आईआईटी, इस साल शायद आईएससी बैंगलोर पेपर बना रही है, तो जो इंस्टीट्यूट पेपर बनाता है उसके पेपर का फॉर्मेट बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे अभी शायद 2013 में आईआईटी कानपुर ने बनाया था और इस साल भी आईआईटी कानपुर ने बनाया था। तो पेपर में जैसे कानपुर बनाता है तो मैकेनिक्स से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, या ऐसे आप कुछ देख सकते हैं। तो थोड़ा सा पेपर फॉर्मेट में हेल्प मिल सकती है। तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट पेपर बना रहे हैं। आईएससी बैंगलोर इस साल मुझे लगता है कि लाइक मीडियम पेपर रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं आना चाहिए, एंड मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस शायद ज्यादा हों। हाँ, तो जैसा कि प्रीतेश ने कहा कि आईआईएससी बैंगलोर बना रहा है इस बार, ऑल्दो बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं डिजाइन किया आईआईएससी बैंगलोर में, तो अभी थोड़ा सा आइडिया हमें उसके पेपर्स का नहीं हो सकता है। बट ये जितने भी टॉपिक्स है यदि आप कवर करेंगे तो जो भी इंस्टीट्यूट बना रहा है ऑब्वियसली वो पेपर हम लोग क्रैक कर ही लेंगे, तो वो इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। तो हमें फोकस यही करना चाहिए कि हम अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सके, फिर इंस्टीट्यूट जो भी पेपर देगा हमसे हो ही जाएगा। ओके दीदी, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि दोनों सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से बुक्स आप रेकमेंड करेंगे ताकि दैट इज बेटर फॉर द अदर एग्जामिनेशन आल्सो फॉर आईआईटी टैम? ज्ञानश्री दीदी। ओके, तो केमिस्ट्री में तो किसी भी सब्जेक्ट में इनफैक्ट बहुत सारी बुक्स होती है, तो बेसिकली जो मैंने फॉलो की है मैं वो बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टार्ट करना चाहिए पॉला वाई ब्रूस से, क्योंकि उसमें काफी इजी वे में चीजें दी हुई हैं। और फिर जो थोड़े से हाई लेवल के टॉपिक्स हैं जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, और फोटो केमिस्ट्री तो खैर बहुत थोड़ा सा है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हो गया। तो उसके बाद आप यदि पॉला वाई ब्रूस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्लैडन से देखना चाहिए, और रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन के लिए पीटर्स आई देखनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडी ली एंड हुई, फर्स्ट जेडी ली उसके बाद हुई देखना चाहिए। और बायो इनऑर्गेनिक के लिए आप अजय कुमार देख सकते हैं, या फिर शॉर्ट नोट्स भी यदि आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उससे मिल जाएंगे, इतना ज्यादा नहीं आता बायो इनऑर्गेनिक से। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पुरी शर्मा पठानिया, केएल कपूर एंड पीटर एटकिंस। हाँ, मैंने यही बुक्स फॉलो की थी। हाँ प्रीतेश, तुम बताओ। ओके हाँ, प्रीतेश तो भैया। फिजिक्स के लिए बेसिकली लाइक एक तो ये है कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने ज्यादा होते हैं, तो अगर आप बेटर न्यूमेरिकल्स वाली बुक दें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि लाइक जैसे अगर आपने अभी सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर आप क्लियर कर चुके हैं, एंड ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के लिए अगर कोई बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो कोशिश अभी मतलब नई बुक पे जाने का ट्राई बस करना। तो क्योंकि बहुत बुक सही है और आपका टाइम लगेगा अगर आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ेंगे। लेकिन अभी अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्ट कर रहे हो तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जेटिली बहुत अच्छी बुक है। जेटिली में स्पेशली शुरू के 6-7 चैप्टर पूरी बुक नहीं पढ़नी है। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए ग्रिफिथ मस्ट है, एंड एवरीवन शुड डू इट, क्योंकि सारे क्वेश्चन सब कुछ वहीं से आता है, स्टैंडर्ड बुक है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बॉयल्स्टेड है, जो कि अभी सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो शायद कोई टीचर उसको रेफर न करे, बट स्टैंडर्ड बुक है, डीयू में और एवरीवेयर यूज होती है, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैथमेटिकल में कोशिश जैम अगर फोकस है तो बहुत कॉम्प्लेक्स बुक जैसे है वेबर एंड ऑल दैट वो ट्राई मत करिएगा। सिंपल मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एच के दास होगी, जो आप पढ़ रहे होंगे शायद फर्स्ट सेमेस्टर से, तो उस पर आप जा सकते हैं। बेसिकली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो ग्रिफिथ और जेटली, एंड अगर और मैंने बताया 12th लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं तो एच सी वर्मा, वही कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स, तो इतना बहुत रहेगा। ओके,
Thank you so much for end of the first talk series. I thank both of you. So, with your permission, क्या हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ, स्टार्ट करो। मतलब अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होगा, तो क्या प्रीतेश भाई हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन? सॉरी, एक मिनट, हाँ फिर से बोलना। मैं ये बोल रहा था कि हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे, सब क्वेश्चंस पूछेंगे आप दोनों से, तो कैन वी स्टार्ट? हाँ, ओके, श्योर। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि वो अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में पुट करे, और उसके साथ साथ अगर आपको डायरेक्टली पूछना है तो वो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन ज्ञानश्री दीदी के लिए है। ज्ञानश्री दीदी, क्वेश्चन अनुकूल ने पूछा है आपसे कि ऑर्गेनिक के लिए मॉरिसन एंड बॉयड नहीं चलेगी क्या? मॉरिसन बॉयड से भी कुछ कुछ टॉपिक देख सकते हैं, बट पॉला वाई ब्रूस बेसिकली बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करती है ऑर्गेनिक पार्ट का, आईआईटी जैम का जो है। आप बुक कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। मैंने जो फॉलो की बेसिकली मैं वो बता रही हूँ कि जो मुझे जो सही लगी। बाकी आप यदि आपके पास सिलेबस है और आपको जो भी टॉपिक उसमें दिखता है मॉरिसन बॉयड में भी, यदि आप उससे भी पढ़ लेंगे तो वो कोई इशू नहीं है। बट आई थिंक वो पूरा सिलेबस नहीं कवर करती है जैम का, और उसमें इतना डिटेल्ड नहीं है। आई मीन बहुत शॉर्ट शॉर्ट दिए हैं बहुत सारे टॉपिक्स। दीदी, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है आरुषि तिवारी से कि डज एडमिशन टू आईसीटी इज आल्सो डन थ्रू जैम? ये तो मुझे आइडिया नहीं है, बट इसका फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, और जैम के थ्रू भी यदि होगा तो शॉर्टलिस्ट वो काफी हाई रैंक तक करते हैं। तो हाँ, जैम के थ्रू आईसीएस में भी होता है, और आईसीटी का मुझे नहीं आइडिया है, और जेएनसीएसआर में भी काफी कट ऑफ तक जाता है। तो हाँ, आईटी आप जैम आप अच्छा दे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। आपको इंटरव्यू में आप जल्दी शॉर्टलिस्ट होंगे। ज्ञानश्री जी, एक क्वेश्चन है नीमा की तरफ से आपके लिए। What about SP blocks, because Rupshikha ma'am told they are not so important? नहीं, पी ब्लॉक तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई मीन पी ब्लॉक से 3-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं से कनेक्ट करते हुए, या तो एमसीक्यू में। इनफैक्ट न्यूमेरिकल बेस में भी इस बार पी ब्लॉक के आए हैं। तो नहीं, पी ब्लॉक मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो रिसेंट पेपर था उसके अकॉर्डिंग भी पी ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिएक्शन फॉस्फोरस कंपाउंड्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसको। बट हाँ, लास्ट में देखना उसे, बिकॉज वो काफी मेमोरी बेस्ड चैप्टर है। हाँ, तो उस चैप्टर को लास्ट में देखना चाहिए। दीदी, आपके लिए और एक क्वेश्चन है अनुकूल से कि नेम्ड रिएक्शन के लिए कौन सी बुक बताए, आप फिर से वो रिपीट करें। ओके, नेम रिएक्शन के लिए क्लैडन। बेसिकली नेम रिएक्शन किसी एक बुक में ऐसा नहीं लगातार दिया, आपको रेफरेंस में जाना पड़ता है, और वो जो भी नेम रिएक्शन सिलेबस में दिए हुए हैं वो सर्च करके फिर उस पेज पे पहुंचना पड़ता है। तो क्लैडन एंड पीटर्स आई, इन दोनों में अच्छे से दिए विद मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत कुमार श्रीवास्तव से है ज्ञानश्री दीदी आपके लिए कि टाइफर एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा आता है। हाँ, अराउंड बहुत ज्यादा आता है। इनफैक्ट और एग्जाम्स के कंपैरिजन में इट्स अबाउट 40-50%। और टीआईएफआर उसी को ऑप्ट करना चाहिए जिसका फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अदरवाइज आप उतना उसको प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज वहाँ रिसर्च भी उसी फील्ड में, जो रिसर्च के टॉपिक्स भी हैं उसी फील्ड में ही बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष से कि the syllabus is given just with few words heading second law of thermodynamics, but in Puri Sharma Pathania a lot of things are given under same topic. How to identify which to study and which one to leave? तो इसके लिए आप किसी भी अच्छी कोचिंग जैसे कैम एकेडमी हो गया, वो डिटेल्ड सिलेबस आप उनकी साइट पे जाएंगे तो टॉपिक के अंदर भी क्या क्या उसके सब टॉपिक से दिए हुए हैं,
तो मुझे लगता है एक बार वो चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज हाँ सिलेबस काफी कंसाइज वे में वेबसाइट, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया रहता है, तो कभी कभी हम लोग को सब टॉपिक्स पता नहीं चलते हैं। बट हाँ थर्मोडायनेमिक्स इम्पोर्टेंट है और वास्ट है, तो उसे पूरा ही कंप्लीट करना चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, अनुकुल ने पूछा है कि डिड यू जॉइन एनी कोचिंग? ये मुझसे ही है? हाँ आपसे ही है। ओके हाँ, तो मैंने कोचिंग की थी, बट अब वो मेरी ऑफलाइन कोचिंग थी, तो अभी तो आप लोग ऑफलाइन कोचिंग कर नहीं सकते। मैंने कैंप सेलेक्ट वाराणसी में जो न्यू कोचिंग खुली थी, हाँ वो मैंने कोचिंग की थी अलॉन्ग विद कॉलेज। और बेसिकली मैं ये बोलना चाहूंगी, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो सच में पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत लोग सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए जरूरत है, और रिटेन भी कर लेते हैं। एंड मुझे लगता है मैं एक ऑडिटरी लर्नर हूँ, तो मुझे लेक्चर सुन के याद रखना बहुत कंफर्टेबल रखता है, वो लॉन्ग टाइम वो माइंड में सेट रहते हैं। दैट्स व्हाई मैंने कोचिंग की, और जिसको भी ऐसा लगता है कि वहाँ लेक्चर सुन के अच्छे से रिटेन रख सकता है, उससे तो कोचिंग करनी चाहिए। बट यदि आपका ये इशू नहीं है, तो बिना कोचिंग के भी एग्जाम इतना टफ नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर पाए। प्रीतेश भैया, क्या आपने कोचिंग लिया था आईआईटी जैम फिजिक्स के प्रिपरेशन के लिए? एक्चुअली मतलब मैं सोच रहा था कोचिंग के लिए, बट कोचिंग अल्टीमेटली नहीं की, क्योंकि जैसे जैसे फिजिक्स की ये है कि आपको मतलब सॉल्विंग बेस्ड ज़्यादा है, तो जैसे आपको एक टॉपिक के लिए टाइम चाहिए और आप अपने हिसाब से थोड़ा चलना ज़्यादा बेटर समझते हैं, तो रिजिड है, तो कोचिंग इसलिए कोचिंग तो नहीं ली मैंने। हाँ लेकिन मेरे पास मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, क्योंकि टेस्ट सीरीज मुझे लगता है सबको लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। दीदी आई थिंक सो एक क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री के लिए है, आई थिंक सो अंकित ये 12th चतुर्वेदी वाला से ना? है। हाँ हाँ, इफ ओके, एनी मैंने पढ़ स्टूडेंट लिया डज है। नॉट हैव। ओके दीदी, ओके। हाँ, तो मैथ्स का आपको एग्जाम अलग से, जो बायो वाले स्टूडेंट है उनको क्वालिफाई करना पड़ता है, वरना आईआईटी इंदौर के अलावा हर आईआईटी में मैथ्स कंपलसरी है टू टेक एडमिशन इन केमिस्ट्री एमएससी। सो आपको अलग से फॉर्म भर के मैथ्स का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इनफैक्ट डीयू में भी आपको नहीं एडमिशन मिल सकता, ओनली ऑन बायो बेसिस फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। एनी मोर क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क टू आवर स्पीकर्स? आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। नहीं, बीएचयू में मैथ्स कंपलसरी नहीं है। फिजिक्स का कोई नहीं है क्या? मैं वही सोच रही हूँ। ठीक है। हाँ, okay. दीदी क्वेश्चन है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी मैथ्स कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन है तृप्ति मिश्रा से। ओके, तो मैंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी पे इतना देखा नहीं था, तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट वो वेबसाइट पे जाके चेक करेगा तो आई थिंक ये उसे वहां मिल जाएगा तुरंत ही। ये मुझे आइडिया नहीं है अभी एसयू का, बट हाँ उसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एसयू का भी बहुत अच्छा है, मतलब बीएचयू एंड डीयू लेवल का, सो इट इज आल्सो वन ऑफ द गुड चॉइस टू टेक एडमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरुषि तिवारी से कि जो मैथमेटिकल पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसको कैसे कवर करना है? मैथमेटिकल पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री का, या फिर जो सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ मैथमेटिकल मेथड्स दिए होते हैं वो उसके बारे में पूछ रही है? आरुषि क्या आपको बोथ बोथ? दीदी बोथ, दोनों दोनों। ओके, तो जो फिजिकल केमिस्ट्री के अलावा पार्ट है वो बहुत नॉर्मल मैथ्स है। इनफैक्ट वो
9th-10th की मैथ्स जो होती है उसके लेवल की होती है। अदरवाइज आप मॉड्यूल मंगा सकते हैं उसका, उस पे मतलब सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और यदि फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें हाँ काफी क्वेश्चंस आपको, स्पेशली उसी में आपको केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे लगता है इन दोनों पार्ट के लिए आपको बुकलेट लेके रखनी चाहिए किसी कोचिंग की, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके, बिकॉज बुक्स में इतने भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए रहते हैं। और बुक्स में भी जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, हर फिजिकल केमिस्ट्री की बुक में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल साथ में दिए होते हैं, उसको जरूर साथ में सॉल्व करना चाहिए एटलीस्ट। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सो मैथ्स के रिलेटेड ही है कि मैथ्स फॉर्म फिल NIOS के थ्रू करना चाहिए या नहीं, मतलब NIOS से मैथ्स वैलिड है या नहीं? हाँ, उससे वैलिड है। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्रीतेश भैया के लिए, तृप्ति दुर्गवंशी से, कि भैया फिजिक्स के लिए किस कोचिंग का टेस्ट सीरीज या मटेरियल लेना चाहिए? ओके, देखो जो मटेरियल है वो मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे आप सबसे पहले आप एक जितने लोग जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटा सा ग्रुप अगर आप बना सके तो बनाइए, एंड देन लाइक 4-5 लोग का ग्रुप रहेगा, देन यू कैन टेक 1-2 कोचिंग के आप मटेरियल दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई भी कोचिंग का मटेरियल है वो कंप्लीट नहीं है एक तरह से, कुछ ना कुछ ऐसा है जो किसी में बेटर मिलेगा। बट मैंने फिजिक्स के FIZIKS है उसके मटेरियल से थोड़ा पढ़ा था मैंने, क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्साइज दिया था, तो मेरे एक फ्रेंड का था तो मैं उससे लेके पढ़ा था एक्चुअली। और बाद में देखा मैंने कैरियर एंडेवर का था, तो उसका भी अच्छा था एक्चुअली। सो बेटर होगा कि आप इसे शेयर करके एनालिस करिएगा। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज कैरियर एंडेवर का बहुत अच्छा है, एंड आपको ले लेना चाहिए उसमें, मतलब टेस्ट सीरीज देने से बहुत सही रहता है। भैया आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन सी बुक, भैया प्लीज थोड़ा रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखो जो बुक मैं बता रहा हूँ उसका है नाम बॉयलस्टेड, BOYLE और STEAD, बॉयलस्टेड। बट एक्चुअली जैसे अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं, फैकल्टी में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको विवेक सर पढ़ा रहे हैं तो उनके नोट्स एक्चुअली इतने अच्छे होते हैं कि आपको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा आप PC रक्षित भी देख सकते हैं, इंडियन ऑथर हैं, समझने में सब आसान रहेगा। और बेस्ट थिंग ये है कि कोई भी बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, केवल जो रिलेटेड टॉपिक है वही पढ़ना। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? ज्ञानश्री दीदी आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि ओके, सो सिंस मैं मैथ्स बैकग्राउंड की हूँ तो ऑनेस्टली NIOS के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट बहुत लोगों ने इससे फॉर्म भरा था जो बायो वाले थे, बट अभी मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि उनने IIT में एडमिशन लिया या नहीं लिया। बट फरवरी में एग्जाम रहता है, और सिंस एटलीस्ट एक IIT तो है जो इसके थ्रू लेता है, और यदि आप अभी से इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आने वाले एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो प्रिपरेशन तो करते रहना चाहिए IIT JAM के एग्जाम के लिए। बाकी मैं सुमित, तुम उसका लेके रखो, मैं तुम्हें कल तक कंफर्म करके तुम्हें बता दूंगी इसके बारे में पूछ के अपने सर से NIOS का। हाँ, एनी मोर क्वेश्चंस? तो कोचिंग मटेरियल मैंने तो कोचिंग की तो मेरे पास ऑब्वियसली था, और मुझे लगता है यदि आप नोट्स अच्छे से बना लेते हैं खुद से तब तो जरूरत नहीं है, बट यदि आपको लगता है कि नोट मेकिंग में प्रॉब्लम है और हैबिट नहीं है आपकी, तो आप कोचिंग का मटेरियल ले सकते हैं, वो बेनिफिशियल ही रहेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें काफी अरेंज्ड वे में सारे टॉपिक्स दिए रहते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस दिए रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के। एंड फिजिक्स के लिए जैसे
कोचिंग मटेरियल नेसेसरी नहीं है, बट अगर आपके पास, आपके रूममेट के पास या कहीं भी आसपास हॉस्टल में किसी के पास है, तो यू कैन जैसे ओवरव्यू आप ले सकते हैं बारी बारी कभी कभी, क्योंकि होता क्या है कि कोई कोई टॉपिक मिस हो जाते हैं। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं, अरे मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, तो हो सकता है कुछ टॉपिक मिस हो गए हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं, बाकी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। Any more questions? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना भी है डायरेक्टली, तो आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। I think there are no more questions. I think Dibyanshu, we must wind up now. Yes, please. ओके ओके, मैं एक Okay. सजेशन दे दूं बस लास्ट, ऐसे ही मैंने सोचा था बताना जरूरी है। जी जी। तो अगर कोई इसमें सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है या सब थर्ड ईयर के हैं? सेकंड ईयर के भी हैं भैया, सेकंड ईयर के भी लोग हैं। सेकेंड ईयर के Okay. वे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो मैं सेकेंड ईयर वालों से स्पेशली कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं और आगे आपको दिख रहा है कि जैम का फॉर्म है या फिजिक्स के हैं तो जेस्ट का फॉर्म है या अभी डेट है फॉर्म भरने की, तो प्लीज आप भी एग्जाम दीजिए, क्योंकि एग्जाम देने से क्या होगा कि लाइक अच्छा होता है, एक्सपोजर मिलता है, और जब थर्ड ईयर में दोगे तो प्रेशर नहीं रहेगा। और अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो जितने एग्जाम दे सकते हैं, लाइक जितना ज्यादा आप एग्जाम देंगे उतना ही आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम में प्रेशर बहुत कम रहेगा। लाइक ज्ञानश्री को देख लो, लाइक जैम क्वालिफाई किया था फिर भी BHU MSc का एग्जाम दिया। तो ऐसा है कि आप जितना एग्जाम देंगे तो आप उतना ही कंफर्टेबल रहेंगे और आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो एग्जाम दीजिए आप। ओके, मैंने अभी एक क्वेश्चन रीड किया, एक बार फिर से रिपीट करना सुमित, किसी ने पूछा एक और क्वेश्चन। हाँ दीदी, क्वेश्चन ये था कि टेल अस द नेम ऑफ द एग्जाम अदर देन IIT जैम फॉर केमिस्ट्री ऑनर्स स्टूडेंट। ओके, तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके एग्जाम होते हैं, बट मैं सबसे जो सही रहती है उसके हिसाब से मैं बताऊंगी, तो DU का भरना चाहिए, BHU का भरना चाहिए और HCU का भरना चाहिए। ये तीन IITs के बाद सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं। और मैं भी एक चीज कहना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट मोमेंट, तो किसी ना किसी वे में, इनफैक्ट मेरा भी उस कारण एग्जाम इफेक्ट हुआ है, तो आखिरी जो लास्ट वीक होता है, स्पेशली जो लास्ट 2-3 डेज होते हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और उस समय यदि कोई चीज छूट भी गई है, कभी कभी हमें लगता है कि एक टॉपिक भी पढ़ गया तो बस आखिरी दिन भी है तो वो पढ़ ले, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नींद उस दिन बिल्कुल बहुत अच्छे से लेनी चाहिए। कुछ लोगों को आती नहीं है नींद स्ट्रेस के कारण एग्जाम के एक दिन पहले, और कुछ लोग पढ़ते रहते हैं इसलिए नहीं सो पाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम वाले दिन से पहले आप प्रॉपरली नींद लें, और एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले। अदरवाइज ज्यादातर बच्चों के साथ ये हुआ है कि उनके टफ क्वेश्चंस गलत नहीं हुए, आसान क्वेश्चंस सब गलत करके आए, मतलब जिसको जितना भी अच्छा नॉलेज है। हाँ, तो ये बहुत लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी आपको ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ ले, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके गए, बट बनते हुए क्वेश्चंस आप गलत करके आएंगे और इससे रैंक पर काफी इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली। हमारे सीनियर ने फोन किया था मुझे, लाइक जस्ट एक दिन एग्जाम से पहले, और बोला था कि आज कुछ मत पढ़ना, जाओ साइकिल से पूरे BHU का चक्कर लगाओ, जितना चक्कर लगा सकते हो घूम लो, लगा लो, पक्का तुम्हारा एग्जाम निकलेगा एंड IIT में जाना है तुमको। तो कॉन्फिडेंस रखना है और हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना है। सही। मेरे भी सीनियर ने किसी ने फोन कर दिया होता तो और बेटर रैंक आ जाती। हम लोग तो पढ़ ही रहे थे।
लास्ट डे में। ये क्वेश्चन है कि अगर कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है इन फ्यूचर तो क्या करना चाहिए? आई थिंक सो कॉमन क्वेश्चन है दोनों के लिए। तो यदि किसी को रिसर्च फील्ड में जाना है तो आईआईटी भी बेटर है, बिकॉज उससे आपको रिसर्च का डायरेक्ट स्कोप मिलेगा, और उसके अलावा आईसर्स रिसर्च के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आईसर का जरूर इंटरव्यू देना चाहिए जिसको भी रिसर्च फील्ड में जाना है, और उस वहां जाके रिसर्च करनी चाहिए। बाकी आप यदि आईआईटी भी में भी जाते, आईआईटी में भी आजकल इंटीग्रेटेड पीएचडीज हो रही हैं बहुत सारे कोर्सेज में, तो जहां भी हो रही हैं आप वहां जा सकते हैं फॉर रिसर्च। और अभी से आप अपना एक टॉपिक और वो बना के चलिए, जिसको भी रिसर्च में जाना है, कि आगे किस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो माइंड में सेट होना चाहिए। हाँ प्रीतेश भैया। ओके। और हाँ, फिजिक्स के लिए मतलब जो, अगर देखो जैसे बीएससी में अभी से आपको एक फिक्स हो गया है कि मुझे इस टॉपिक में रिसर्च करना है, एस्ट्रोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, या कुछ भी आपने ऐसे सोच लिया है, तो फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी करना बहुत अच्छा है। तो अगेन आईसर्स हैं, सीआईएफआर है, और आईसीटीएस बैंगलोर एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। और जैम के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जेस और टीआईएफआर। ये दो तीन एग्जाम्स तो आपको देने ही देने चाहिए। तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि मैं एग्जैक्टली किस फील्ड में रिसर्च करूँ, लाइक अभी भी आप थोड़े श्योर नहीं है, देन एमएससी के लिए जाना चाहिए, दैट विल बी बेटर। क्वेश्चन है युवराज हंसराय से कि क्या आपने बीएससी के पहले साल से ही माइंड मैप बना लिया था कि आईटी एग्जाम निकालना है? मुझे लगता है कि ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था, बट हाँ, मुझे बीएससी के पहले आई थिंक 12th का जब आप एग्जाम ओवर हो जाता है तो बहुत सारा गैप रहता है, तो मैंने देखा था कौन कौन से एग्जाम हम लोग दे सकते हैं। तो हाँ, मैंने पहले से ही सोचा था कि अच्छा एक एग्जाम होता है, तब मुझे पता चल चुका था। बट ऐसा नहीं सोचा था कि जाना ही है या नहीं जाना है। वो सेकेंड ईयर से ही जब हम लोग को पता चला कि हाँ सीनियर्स हमारे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी से मोटिवेशन आया कि चलो ठीक है आईआईटी एग्जाम देना है या क्रैक करना है। बट हाँ, इससे पहले बीएससी से पहले नहीं सोचा था, मतलब 3 साल पहले नहीं। मेरा तो 6th क्लास 7th क्लास से था कि रिसर्च में जाना है। तो एक बार बीएचयू में एडमिशन हो गया तो मैंने सोच लिया था कि यहीं से बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे और कुछ बन जाएंगे। बट जैसे आपको पता चलता है, लाइक सेकेंड ईयर में मुझे भी ऐसा आइडिया हुआ कि कुछ जैम है, एंड थर्ड ईयर से तो प्रिपरेशन शुरू की। बट वही है, अगर आप थोड़ा सा मतलब सिलेबस क्लियर हो तो जैम इज नॉट वेरी टफ। हाँ रौनक, अंकित, वो मैं बता दूंगी तुम्हें, उससे तुम अंकित, उसको बता देना, वो एनआईएस का ही पूछा उसने। अच्छा अच्छा, ओके दीदी, ओके दीदी। एनी मोर क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क? I think we must wind up now, Divyanshu. Yes, I don't think there is any question, so we can conclude the session. Okay, so here comes the end of the second day of Success Mantra Toppers Talk series. I would like to thank Pritesh Bhaiya and Gyanshri Didi for being a part of this talk and sharing their experiences for their preparation strategy. I thank both of you, and thank you so much for telling us about your preparation strategy and also different entrance examinations that one must appear. So tomorrow will be the third day of Success Mantra Toppers Day series, and the topic of discussion will be based on data science, which basically consists of mathematics and statistics. So here we are disclosing the speakers who will be a part of tomorrow's talk.
So we will be having Nikita Didi, who has secured who has secured a rank of 73 in IIT JAM Mathematics 2020. Also, we will be having Swetang Bhaiya, who has secured a rank of 91 in IIT JAM Statistics 2020. So we will meet tomorrow. Lastly, to our speakers and all the participants, thank you so much for attending. Thank you so much, everyone. Thank you so much for having us. Thank you, Didi. Yeah, thank you. Thank you, Pritesh Bhaiya. Thank you so much, Gyan Citizen Pritesh Bhaiya.